Hello viewers, welcome to this phase of our disaster management for UPSC. My name is Rohit. So let's start the sections on vulnerability, which is very important topic for the disaster management for preparedness and mitigation. So let's start. First, we will see the differences between the vulnerability versus exposure, because we many times and many of us we confuse with the vulnerability and the exposures. So to see the difference, we first will see the uh, phrase like while most natural hazards may be inevitable, disasters are not. So to understand the difference between the vulnerability and exposed, we have to be examine this. While most natural hazards may be inevitable, disasters are not. Because हमने पहले भी देखा है, hazards is the mother of the disasters, but every hazard is not going to be a disasters, because disasters होने के लिए वो दो factors पे depend करती है. The first one is the risk and second one is the vulnerability. Okay, तो that's why यहाँ पे hazards और exposures की हम बात कर रहे हैं. तो exposures क्या होगा, मान ली कोई community है वो किसी drought affected regions में रह रही है या किसी flood plain region में रह रही है, like Kosi rivers in the Bihar. The communities are there, but in the recent years government has made several plans, several watershed management strategy there, and DRF team has many preparedness and mitigation strategy. तो वहाँ का जो exposures है, it is continuously, but the vulnerability of the peoples because of their education, their capacity building programs, तो उनकी जो vulnerability है वो continuously घट रही है. That is the difference. तो यहाँ पे हम वन बाय वन देखते हैं. तो vulnerability describe a propensity to incur consequences. तो यहाँ पे जो propensity का meaning है कि किसी भी community की या किसी भी चीज की, नॉट कम्युनिटी वन, कम्युनिटी स्ट्रक्चर्स, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, उसकी प्रोपेंसिटी उसकी कैपेसिटी जो है उसकी बाउंड करने की, मतलब कोई भी नेचुरल हैजार्ड है या कोई भी हैजार्ड है, नेचुरल है, टेक्निकल है, किसी भी चीज की, किसी भी स्ट्रक्चर्स की, कम्युनिटी की, वो कहाँ तक उसको सहन कर सकता है, कहाँ कितना उसके ऊपर घाव होगा, वो उसकी प्रोपेंसिटी कहलाती है. एक्सपोजर्स merely suggest that the individuals, structures, community, nations or other subject will be confronted by the forces associated with that particular hazard. That means exposure doesn't tell us about the vulnerability and their consequences. Second one is we will look at the this diagrams here. Relative vulnerability दिखाई गई है और in the left hand sides average annual death को दिखाया गया है, and this horizontal line shows the average population exposed to the droughts, millions of people है. तो अगर हम यहाँ पे देखिए यहाँ पे अगर हम 10 वाले portions को देखते हैं तो यहाँ पे यूनाइटेड नेशंस है, फिलीपींस है, ब्राजील है, पाकिस्तान है, इंडिया है, इंडोनेशिया, चाइना. अगर हम इन सब कंट्रीज को देखते हैं, ये सभी कंट्रीज क्या है, इन कंट्रीज की सबकी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है. अगर हम देखते हैं तो ये मोस्टली पॉपुलेटेड कंट्री है ऑफ द वर्ल्ड. और चाइना इसलिए ऊपर है क्योंकि ये डायग्राम अभी 1990 से 2004 तक का डायग्राम्स है, तो उस समय पे चाइना भी अभी अंडर डेवलप ही था, तो इसलिए चाइना ऊपर है, और इंडिया से उसकी पॉपुलेशन ज्यादा है तो इसलिए वो ऊपर है अभी. बट यहाँ पे अगर हम यूनाइटेड नेशंस को देखें, यूनाइटेड स्टेट्स को यहाँ पर अगर देखें तो राइट हैंड साइड में आप देखोगे रिलेटिव वल्नरेबिलिटी. अगर आप ऊपर जाते हो तो हाई होता है और नीचे जाते हो तो लो होता है. यूनाइटेड स्टेट्स में देखा गया है कि जो एवरेज पॉपुलेशन एक्सपोज टू ड्रॉट्स है वो हाई है, बट उसकी जो वल्नरेबिलिटी है वो लो है. इट इज देयरफॉर डिपेंड अपॉन दी गवर्नमेंट स्ट्रेटजी, देयर कम्युनिटी की जो कैपेसिटी है, ओवरवेलमिंग कैपेसिटी टू डिफेंड इटसेल्फ विद द ड्रॉट्स, या ड्रोट के बाद के जो प्लान हैं, प्रिपेयरनेस है, या फिर उसके आफ्टर दैट जो भी गवर्नमेंट स्ट्रेटजी लेती है वो गवर्नमेंट के बहुत अच्छे हैं. तो यहाँ पे डेवलप कंट्रीज हैं तो इसलिए सबसे नीचे देखने को मिलेगा. बट उससे ऊपर जाते हैं फिलीपींस है, ब्राजील है, जबकि हम इंडिया, इंडोनेशिया और चाइना को अगर हम देखते हैं, ये भी पॉपुलस कंट्री और इनकी रिस्क ऑफ वल्नरेबिलिटी ज्यादा है. और 2000 अराउंड 2000 में ये कंट्री इतने डेवलप नहीं थे, आज इनकी कॉपिंग कैपेसिटी ज्यादा है हालांकि. तो इस तरीके से ये यहाँ पे रिलेटिव वल्नरेबिलिटी और उसको दिखाया गया है. अब देखते हैं हम टाइप्स ऑफ वल्नरेबिलिटी. देयर आर जनरली 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ वल्नरेबिलिटीज होती है. द फर्स्ट वन इज द फिजिकल, सेकंड सोशल, इकोनॉमिक एंड द एनवायरमेंटल वल्नरेबिलिटी. तो वी विल लुक एट दिस वन बाय वन.
द फर्स्ट वन इज द फिजिकल वल्नरेबिलिटी। अगर हम फिजिकल वल्नरेबिलिटी को देखते हैं तो ये बेसिकली क्या होता है कि द इंटरेक्शन बिटवीन द लिविंग थिंग्स, स्ट्रक्चर्स, मटेरियल्स, ऑब्जेक्ट्स, सिस्टम्स, फिजिकल फोर्सेस ऑफ द हैजार्ड, इट इंक्लूड ज्योग्राफी, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड द पॉपुलेशन। कैसे? मान लिया अगर हम फिजिकल वल्नरेबिलिटी देखते हैं, किसी भी रीजन्स की देखते हैं, उसकी ज्योग्राफी देखते हैं, उसका नेचुरल मेकअप कैसा है, लाइक अगर हम कोस्टल सिटीज है, लाइक चेन्नई की बात कर लिए, भुवनेश्वर की बात कर लिए, तो ईस्टर्न कोस्ट ऑफ द इंडिया है, अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो ट्रॉपिकल साइक्लोन की जो फ्रीक्वेंसी है बिकॉज ऑफ द क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग, इट इज इंक्रीजिंगली डे बाय डे, और इंटेंसिटी भी इंक्रीज कर रही है। तो उनकी ज्योग्राफी के हिसाब से अगर देखें तो इन कोस्टल सिटीज की अगर हम देखते हैं तो वल्नरेबिलिटी बहुत ज्यादा है, तो फिजिकल वल्नरेबिलिटी ज्यादा होगी। अगर हम ऊपर हिमालय रीजन्स की देखते हैं, जहाँ पे जो जोन 4 जोन 5 है, जो कि सिस्मिक एक्टिविटी के मामले में, तो जो सिटीज है जो स्लोप सिटीज है वो ज्यादा वल्नरेबल है, तो वो उसकी ज्योग्राफी, उसकी नेचुरल मेकअप कैसा है। द सेकंड फैक्टर जो ये हम देखते हैं वो है आपका इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है कि उस कंट्रीज का अर्थक्वेक रेजिलिएंट स्ट्रक्चर्स कहते हैं, मतलब वहाँ पे क्या कोड है कोई बिल्डिंग्स के रेजिलिएंट बनाने के लिए, क्या एनडीआरएफ टीम का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, हॉस्पिटल्स कैसे है उसको फाइट करने के लिए, वो इसके इंफ्रास्ट्रक्चर पर डिपेंड करता है। फोर्थ वन इज है पॉपुलेशन। पॉपुलेशन पे डिपेंड करता है कि पॉपुलेशन की मूवमेंट क्या रही होगी उस समय पे, प्रेजेंस क्या रही होगी, डेंसिटी क्या रही होगी इस रीजन में। अगर हम देखते हैं तो इसका एक सिंपल एग्जांपल हम देखेंगे, 2008 सिचुआन अर्थक्वेक वाज डिजास्टर। व्हाई 2008 सिचुआन अर्थक्वेक वाज डिजास्टर? ये बहुत ही एक इसको बोलते हैं ना एक रोचक, इसके लिए एक फैक्ट है यहाँ पे, क्योंकि जब ये अर्थक्वेक आया था इट वाज अराउंड, अगर इसका टाइमिंग हम देखते हैं तो ये अराउंड 2:30 पे आया, जिस समय पे ऑफिसेस फॉर रनिंग, चिल्ड्रन वाज इन स्कूल्स। ओके, तो बिल्डिंग्स जो थी वहां की वो सभी क्या थी, फुल्ड थी। तो 2:30 बजे जब अर्थक्वेक आया, इट वाज वेरी हाई मैग्नीट्यूड, 7.9 मैग्नीट्यूड का ये अर्थक्वेक था। तो इसलिए डिजास्टर था क्योंकि मोस्ट ऑफ द पीपल्स वर इन द हाउस, इन द बिल्डिंग्स दैट टाइम, और दैट्स व्हाई इस जो अर्थक्वेक था इसने अराउंड 40,000 पीपल्स जो है इसमें डेथ हुई थी। तो दैट व्हाई दिस वाज द सिचुएशन, और दैट्स व्हाई डिपेंड्स ऑन द पॉपुलेशंस, उसकी मूवमेंट्स की उस पे डिपेंड करता है, वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर पे डिपेंड करता है कि रेजिलिएंट बिल्डिंग्स थी कि नहीं थी। दैट्स व्हाई द 2008 सिचुएशन अर्थक्वेक वाज सो डिजास्टर्स। The second one is the social vulnerability. Social vulnerability क्या होता है कि the social makeup of the populations, क्या social makeups है, उनकी educations क्या है, आपका gender inequalities कितनी है, आपकी gender populations, आपकी child populations कितनी है, आपकी aging populations कितनी है। क्योंकि हमने देखा है कि जो vulnerability है वो sex पे डिपेंड करता है, क्योंकि अगर हम एक मेल अडल्ट की बात करते हैं तो उसकी जो कैपेसिटी है डिजास्टर्स के प्रति, उसके एक्शंस लेने के प्रति, वो क्योंकि थोड़ा स्ट्रॉन्ग, इसलिए वहां पे उसकी कम रहती है। जबकि चाइल्ड एज, ओल्ड एज जो पीपल्स होते हैं उन पे उस डिजास्टर्स का जो इम्पैक्ट होता है, जो प्रोपेंसिटी होगी, इट विल बी वेरी हाई। ठीक है, तो एस्पेक्ट ऑफ द सोशल प्रोफाइल्स आर डाइवर्स एंड द कंप्रोमाइज, जैसे कंप्राइज एजुकेशन, कल्चर, गवर्नमेंट, सोशल इंटरेक्शन, वैल्यूज, लॉज, बिलीफ्स अमंग अदर्स। लाइक हम इसका एक एग्जांपल है, बहुत अच्छा एग्जांपल है 2001 का गुजरात अर्थक्वेक। It is because of the custom practices थी, like 2,000 people were killed in that attack because primarily as a result of the resilient cell structures failures। और वहां पे देखा गया है कि जो वहां पे जो उनकी जो हट थे ना, जो ट्रेडिशनल हट्स थे, इनको बूंगा बोलते थे, there was no a single bunga was collapsed there। Okay, so this was also a social vulnerability example। सेकेंड एग्जाम्पल अगर हम देखते हैं सोशल वल्नरेबिलिटी का, देखिए टोंगा सब बात लो। टोंगा एक कोस्टल कंट्री, आइलैंड कंट्रीज है, और यहाँ पे संडे लॉ बनाया हुआ है जो कि क्रिश्चियंस लॉ के हिसाब से चलता है कि संडे में कोई भी काम नहीं होगा। देयर विल बी प्रोहिबिट ऑन द लेबर्स, बिजनेस, ऑल गेम, रेसेस और अदर स्पोर्ट्स फॉर। तो वहाँ पे संडे को बिल्कुल जो है एक डे माना जाता है। और उस समय पे क्या हुआ है कि वहाँ पे मान लिया ट्रॉपिकल साइक्लोन आया उस समय पे, और टोंगा की गवर्नमेंट ने कंप्लीटली बैन कर रखा है। तो वहाँ पे जो भी कार्गोज आने थे या कोई भी प्लेन्स आना था हेल्प के लिए, वो वहाँ पे हुआ ही नहीं। तो उस वजह से भी डिजास्टर्स कई बार बैडली हो जाते हैं। इकोनॉमिक वल्नरेबिलिटी सिंपल उसकी इकोनॉमिक कैपेसिटी पे डिपेंड करता है, इंडिविजुअल्स की, टाउन की, सिटीज की, कम्युनिटीज की और होल कंट्रीज टू
protect themselves from the effect of the disaster. इसके एग्जांपल बहुत, अगर हम अफ्रीकन कंट्रीज की बात देखते हैं जैसे MERS या फिर इबोला वायरस, वहाँ पे डेडली सोज होता है क्योंकि उन कंट्रीज की कैपेबिलिटी जो है वो उतनी नहीं है और ओवरवेलमिंग कैपेसिटी से तुरंत पास हो जाता है। मान लिया अगर हम यूएसए की और पाकिस्तान की कंपैरिजन करते हैं, पाकिस्तान की इकोनॉमी अगर देखें तो बिल्कुल कोलैप्स है, बिल्कुल बहुत कम उनकी वो है, और यूएसए की इकोनॉमी को, तो अगर हम एक कंपैरिजन कर रहे हैं दोनों को और एक जगह पे अर्थक्वेक आ रहा है दोनों जगहों पे सेम मैग्नीट्यूड का, तो यूएसए की जो कैपेबिलिटी है वो इट विल बी हाई बिकॉज ऑफ देयर एंटायर टीम देयर, बिकॉज ऑफ द स्ट्रक्चर्स दे हैव बिल्ट, देयर रेस्पॉन्स मैकेनिज्म, तो वो उसकी कंट्रीज की इकोनॉमिक कैपेसिटी पे भी डिपेंड करता है। एनवायरमेंटल वल्नरेबिलिटी, एनवायरमेंटल वल्नरेबिलिटी कैसे होता है कि हाउ हेल्थ एंड वेलफेयर ऑफ द नेचुरल एनवायरनमेंट विद इन द एरिया ऑफ स्टडी फैक्टर्स इनटू द प्रोपेंसिटी ऑफ द अफेक्टेड पॉपुलेशन टू इनकर डिजास्टर consequences, लाइक फॉर एग्जांपल पुअर एनवायरमेंटल प्रैक्टिसेस सच डिफोरेस्टेशन है, या फिर लैक ऑफ लैंड यूज प्लानिंग है, मैनेजमेंट ऑफ द हैजार्डस मटेरियल्स है, और लाइक इसका एग्जांपल लाइक हम देख सकते हैं कि जो किस लेसन वन फार्मिंग की हम बात करते हैं तो उसमें एनवायरमेंटल पॉपुलेशन लगातार बढ़ रहा है, या हैजार्डस मटेरियल्स की मूवमेंट की बात कर रहे हैं तो रिवर पोल्यूशन लगातार बढ़ता जा रहा है, इससे उनकी हमारी जो एनवायरमेंटल वल्नरेबिलिटी है वो भी बहुत ज्यादा इफेक्ट होती है। ये हाई इनकम, मिडिल इनकम और लो इनकम कंट्रीज का है कि कौन ज्यादा सबसे इफेक्ट होता है, तो जो लो इनकम कंट्रीज होते हैं दे आर इफेक्ट बैडली एज कंपेयर टू द मिडिल और हाई इनकम कंट्रीज। So risk factor that influence the vulnerability. What are the risk factor that influence the vulnerability? There are two factors here. Basically, first one is the urbanization, second one is the rural livelihood. दोनों के aspects अलग-अलग है, दोनों aspects अलग-अलग में होता है। कई बार rural livelihood is more safe, और कई बार क्या होता है कि urbanization is more vulnerable. So we will see one by one. तो फर्स्ट वन we will see कि urbanization कैसे influence करता है vulnerability को। तो इन एडिशन टू, अगर हम देखते हैं कि इन एडिशन टू द कंसंट्रेशन ऑफ द पॉपुलेशन, अर्बनाइजेशन कंसंट्रेट नेशनल वेल्थ एज वेल एज रिसोर्सेज इनटू स्मॉल ऑफन वल्नरेबल पॉकेट्स। तो इसके चलते क्या होता है कि अगर कुछ भी यहाँ पे अगर मान लो कोई भी डिजास्टर्स आएगी वो बहुत ज्यादा बैडली होगी, वो बहुत ज्यादा बैडली होगी। So several reasons why urbanization contribute to risk and vulnerability. The first one is the risk by the origins. Risk by origin because of their locations. जो cities के location है, first example इसका क्या है, like coastal cities. अगर आप coastal cities को देखते हो, like भुवनेश्वर हो गया, चेन्नई हो गया, they faced severe tropical cyclone disasters. Second one is the Mexican city. Mexican city is in the seismic activity zone, so it is more exposures, more vulnerable. Okay, the second factor is that increasing physical exposure. So when urbanization take place, तो जो marginalized peoples है very often pushed to more dangerous, riskier part of the city. For example, when where construction is prohibited, floodplains which are more vulnerable, more exposed to the yearly or recurrent flood features, slum clusters where the hygiene problem is so disastrous. Okay, third one is the social exclusion. Social exclusion, अगर हम urbanization को देखते हैं तो unlike rural areas where you will find a community cohesion, community based coping and support systems, तो उसके चलते रूरल पीपल्स जो होते हैं कई बार किसी भी डिजास्टर्स को, जो हैजार्ड्स होता है उसको डिजास्टर होने से कई बार बचा लेते हैं बिकॉज ऑफ देयर कॉपिंग एंड सपोर्ट सिस्टम्स। ओके, फिर हम देखते हैं मॉडिफिकेशन एंड जनरेशन ऑफ द हैजार्ड पैटर्न्स। तो मॉडिफिकेशन एंड जनरेशन ऑफ द हैजार्ड पैटर्न्स क्या है कि व्हाइल वी हैव सीन लाइक कि बिकॉज ऑफ द अर्बनाइजेशंस देयर इज जो कि हमारे जो शॉक एब्जॉर्बर्स होते थे, जो कि हमारे फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस होते थे ऑफ एनी हैजार्ड्स लाइक वेटलैंड, फ्लड प्लेन्स, फॉरेस्ट, बिकॉज ऑफ अर्बनाइजेशंस दे हैव कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड। तो उनके चलते क्या हुआ है कि पीपल्स जो है क्योंकि उन पे बसासत हो गई एक तरीके की वेटलैंड्स पे, फॉरेस्ट पे, फ्लड प्लेन्स पे, क्योंकि हमारे फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस एक्ट करते थे, तो उसके चलते भी वल्नरेबिलिटी बढ़ गई है। अर्बनाइजेशन ऑफ न्यू रीजन्स, यहाँ पे देखा गया है कि मेनी सिटीज हैव बीन अर्बनाइज्ड विदाउट प्रॉपर स्टडी, लाइक ये सिटी पे वाटर लेवल्स क्या है, यहाँ पे फ्यूचर्स इसका प्रोस्पेक्ट्स क्या होगा, एग्रीकल्चर लैंड को तो नहीं ले रहे हैं, फॉरेस्ट काटने के बाद तो नहीं कर रहे हैं, दैट बिकॉज ऑफ दैट।
एक्सेस टू लॉस मिटिगेशन मैकेनिज्म, सम टाइम क्या होता है कि कंट्रीज की अर्बनाइजेशन के चलते क्या होता है कि जो सिटीज है म्यूनिसिपल एरियाज है दे कुड नॉट इंक्रीज देयर कॉपिंग कैपेसिटी, और उसके चलते क्या होता है वो उनकी जो सर्विसेज होती है वो कम्प्लीटली कोलैप्स हो जाती है। अब देखते हैं हम रूरल लाइवलीहुड। रूरल लाइवलीहुड क्या होता है कि फर्स्ट वन विल टेल यू अबाउट द रूरल पॉवर्टी। अगर हम रूरल पॉवर्टी को देखते हैं बिकॉज ऑफ द, अगर हम अर्बन और रूरल को कंपेयर करते हैं कई बार, अर्बन पीपल हैव मोर कोपिंग कैपेसिटी इन कंपेयर टू द इकोनॉमिक differences. So rural people does not have such economic support, and because of that, they are more vulnerable. So second one is that environmental degradation, because the rural peoples are mostly depend upon the agriculture practices, and because of that, they are often involved in the deforestation, overgrazing of the lands, poor farming practices, alteration of the waterways. So due to that, they are more vulnerable. नॉन डाइवर्सिफाइड इकोनॉमीज, नॉन डाइ बिकॉज हमने देखा है, वी हैव सीन दैट कि द मोस्टली द पुअर पीपल, मोस्टली द रूरल पीपल, सॉरी, मोस्टली द रूरल पीपल्स आर डिपेंडेंट ऑन द एग्रीकल्चर एंड देयर इकोनॉमी इज नॉट डाइवर्सिफाइड, और बिकॉज इंटरनेशनल, मान लिया कोई भी कमोडिटी में डिमांड में शिफ्ट होता है या प्राइस शिफ्ट होता है, उसके चलते दे इफेक्ट बैडली। Isolation and remoteness के चलते proper mitigation of preparedness strategies were not so involved in that, और इसमें अदर फैक्टर्स भी हम इन्वॉल्व कर सकते हैं जो कि वैसे तो सोशल एक्सक्लूजन, सोशल फैक्टर्स में इंक्लूड हो गया है, एजुकेशन, मच लेवल एजुकेशन भी वहाँ पे इन्वॉल्व होता है। तो थैंक यू गाइस, वी विल मीट अगेन।